Hello students, myself Sonika Yadav from HCI and it is my lecture number 11 of the 9th biology class. In this lecture, I want to discuss the last topic, that is disease caused by bacteria of the chapter number 5, why do we fall ill. So we already discussed some diseases like the tuberculosis, typhoid. Okay, now I want to discuss with you the diarrhea. So diarrhea बेटा एक ग्रुप ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है. जो मेन रहेगा बेटा यहाँ पर सिम्टम, दैट इज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ड्यू टू विच डिस्चार्ज ऑफ द सेमी सॉलिड और द फ्लूइड फिकल मैटर. It may be loss of appetite as symptom, vomiting, or we can say gargling noise produced by the movement of gas in our alimentary canal. Okay, and this disease is not only caused by bacteria, this disease is also caused by protozoa, virus, nematoda. So what are the main symptoms? The main symptoms is the frequent loose motions and the vomiting, which lead to dehydration. That means loss of the excess water molecule. So if excess water lost from the body in a very short time, that may be cause death of the infants due to the diarrhea or due to the excess loss of the body fluid, and it may be the patient feel irritation and eyes sunken, noise is pinched, and we can say the cheeks feel dry and excessive loss of the body weight. How to prevent? This is the important. But this disease prevented by the community hygiene. If we live in a hygienic environment, we are safe, and we eat the proper fruits and vegetables after proper washing, so we can prevent it. So community hygiene is the best key to prevent the diarrhea. How to control? This disease can be controlled by taking the husk of Plantago ovata or the isabgol seeds with the water or the curd, because these seeds, they retain more water in the body and they help in maintaining the hydrating the body. And we can take the antimicrobial drug or we can say anti-diarrheal drug, which can prevent the diarrhea. And due to the excess loss of water, our body that dehydrates. So for rehydration, we take ORS, oral rehydration solution, that contain salt and the sugar, which maintain the electrolyte balance in our body. One more disease, that is the salmonellosis. So बेटा फूड पॉइजनिंग बाय बैक्टीरिया सैल्मोनेला. सो जो डिजीज हो रही है सैल्मोनेला से, वो कहलाएगी सैल्मोनेलोसिस. बैक्टीरिया जो सैल्मोनेला है बेटा, ये पाया जाता है फार्म एनिमल्स में. सो अगर हम किसी बीमार एनिमल से उसका फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, मीट ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, so there may be chance the salmonella transfer from that animal and grow into our intestine, that do food poisoning in our intestine. So food poisoning, during the food poisoning, bacteria, that is the Clostridium botulinum, it making the toxin, that is the botulism. Botulism, it is botulism a disease, and toxin is botulin. So we can eat the preserved food. If the preserved food is not properly sterilized before preservation, this bacteria will cause the paralysis, because it is a potent neurotoxin. सो बॉटुलिज्म क्या है बेटा? एक डिजीज है जिसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम बेटा
ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, दैट इज द बोट्युलिन। और ये टॉक्सिन बेटा उन फूड्स में ज्यादा पाया जाता है जिनको हम कहते हैं डिब्बा बंद। सो जो डिब्बा बंद फूड हैं उनकी अगर प्रॉपर बेटा क्या ना हो, उनको प्रॉपर फर्टिलाइज नहीं किया गया हो, प्रॉपर फूड को अच्छे से स्टोर नहीं किया गया हो, प्रिजर्वेटिव अच्छे से नहीं डाला गया हो, सो दैट टाइम दैट बैक्टीरिया क्रिएट द बोट्युलिन टॉक्सिन एंड ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए हार्मफुल है और ये हमारी बॉडी को पैरालाइज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा डिजीज दैट इज द एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बेटा एक एक्यूट इन्फेक्शन है जो बेटा एक बैक्टीरिया से हो रहा है और जिसे हम बैसिलस एंथ्रेक्सिस कहते हैं। ये मोस्टली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो कैटल हैं, शिप है, गोट है बेटा, इन सब में पाई जाती है। ये ह्यूमन बीइंग को भी अफेक्ट करती है। ओके, सो ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये जो डिजीज है ये 3 फॉर्म में पाई गई है। ये हमारे स्किन के ऊपर लाइक क्यूटेनियस एंथ्रेक्स होगा, जिसमें जो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स बहुत ही रेयर है और ये स्किन को अफेक्ट करता है। इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स ये एक अगर हम बात करते हैं कॉमन है। इसमें होगा क्या कि वॉमिटिंग, पेन और ब्लड आएगा किसके साथ, वॉमिटिंग के साथ। ओके, ये डेथ कर सकता है। ओके, इन्फेक्शन बाय द इनहेलेशन, ये कॉमन कोल्ड की तरह हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो एंथ्रेक्स की अगर हम बात करते हैं, सो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीन ऑफ द एंथ्रेक्स। ओके, सो कंट्रोल क्या है, इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स लिए जाएं और एंथ्रेक्स को ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट डिजीज दैट इज द पेप्टिक अल्सर। बेटा पेप्टिक अल्सर एक पेनफुल क्या है बेटा डिजीज है जिसमें स्टमक और ड्यूडेनम एरिया में क्या हो जाते हैं, अल्सर। अल्सर होते बेटा छाले। सो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है ये, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर HCl की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। HCl क्या है, एक एसिड है जो हमारी स्टमक में नॉर्मली बनता है और उसका फॉर्मेशन नेसेसरी है फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। बट पेप्टिक अल्सर की में होता क्या है कि गैस्ट्रिक एक्टिविटीज में HCl की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो इनर लाइनिंग है स्टमक की ये डिप्लीट होने लगती है और ये डिप्लीशन होने की वजह से यहाँ पर हमारे स्टमक में छाले होने लग जाते हैं। सो ये मोस्टली स्टमक की जो लोअर पार्ट है वहां पर और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द ड्यूडेनम, उस एरिया में क्या करता है, इन्फेक्शन होता है। सो जो ये पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रिक एक्टिविटी बढ़ी क्यों, उसके लिए कारण है बेटा दैट इज द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये है पॉजिटिव एजेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। बेटा ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन कॉज करेगा और जिसकी वजह से क्या है, गैस्ट्रिक एक्टिविटी इन द स्टमक बढ़ जाती है। सम पर्सन विच टेकिंग द स्ट्रेस, उनके भी बेटा गैस्ट्रिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। सो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। सो जो गैस्ट्रिक बैक्टीरिया है दैट इज द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इट कैन बी ट्रीटेड बाय द amoxicillin antibiotic and it can be cured by antibiotic effectively. So during this peptic ulcer, painful conditions hai and pain in the stomach and loss of appetite, that is the main symptoms. This disease is a treatable disease. It can be treated by using the antibiotics. Marshall and the Warner, they are the scientists who discovered about the medicines and they won Nobel Prize in the physiology and medicine in 2005. So peptic ulcer, a painful bleeding that within the stomach and the duodenum, and it is caused by Helicobacter pylori. Thank you so much. Have a nice day.